Hello friends, I am Shalabh Jain and today we are starting series of literature. Previously we have completed the section of poetry and now of the same book we are starting the topic of literature. The first chapter is The Last Lesson, which has been written by Alphonse Daudet. You know very well, in this chapter Alphonse Daudet has highlighted the impact of Franco-Prussian War. फ्रांस और पुर्सिया के बीच में जो वॉर हुई दैट वाज बिटवीन 1870 टू 1871। और पुर्सिया किसे कहा गया? इन पुर्सिया देयर वर थ्री कंट्रीज, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन तीनों को मिलाकर के कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री you get the name Prussia, but today Germany is separate, Poland and Austria, they are different countries. But during 1870 and 1871 the war had been started between Prussia and France, and in that war France had to face defeat. France को defeat face करनी पड़ी. So in this story, the writer Alphonse Daudet has highlighted two important points. Number one, linguistic chauvinism. Linguistic chauvinism. Linguistic chauvinism means the obsession towards one's mother tongue to such an extent that you start disrespecting the mother tongue of others. फिर सुन लीजिए एक बार. Linguistic chauvinism means, linguistic means language, chauvinism means obsession. So linguistic chauvinism means obsession towards one's mother tongue to such an extent, अपनी मदर टंग के लिए इतना obsessed हो जाना कि यू डू नॉट रिस्पेक्ट द मदर टंग ऑफ अदर्स. जब आप दूसरों की मदर टंग को रिस्पेक्ट ना करें, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म. और दूसरी इसकी जो थीम है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन? व्हेन यू पोस्टपोन एनी एक्टिविटी टिल टुमारो, टिल फ्यूचर. कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. The people who keep postponing their learning, their activities, that is called procrastination. In this story, the people of Alsace and Lorraine, Alsace and Lorraine, they were two districts of France. In these two districts, people were very much procrastinating. They were procrastinating their learning. And ultimately, when they came to know it was last lesson of French language, they felt sorry. So the first theme of the chapter is linguistic chauvinism. The pronunciation is chauvinism, so mind the pronunciation. It starts with ch, but it is chauvinism. And the second is procrastination. So this story is entirely based on a boy Franz, who was a French, or you can say he belonged to France, and how he was feeling when he came to know it was his last day of learning. So this story has been mentioned from the Franz perspective. It means writer is Alphonse Daudet and narrator is Franz. In the exam हम यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल relevant questions की, relevant points की, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? हु इज राइटर? सो राइटर इज अल्फोंसे, बट हु इज नरेटर? फ्रेंज. फ्रेंज इज नरेटर. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, व्हेन फ्रेंज स्टार्टेड फॉर स्कूल, मॉर्निंग का टाइम था, फ्रेंज बाई चांस गॉट लेट फॉर द स्कूल. अब प्रॉब्लम क्या थी? ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट. असाइनमेंट क्या था? एम हैमल हैड गिवन एन असाइनमेंट that you have to go through the rules of participles. As you know, participles is a part of grammar. तो आज क्लास में participles के rules डिस्कस होने थे, but friends had not gone through the assignment.
अब उसको डर था, इन टुडेज क्लास ही विल बी स्कोल्डेड, डांटा जाएगा उसको आज। तो फॉर ए मोमेंट ही प्लान कि चलो आज एक काम करते हैं, आज बंक मार लेते हैं, लेट्स स्किप द स्कूल और टाइम पास करते हैं कहाँ पर, आउटडोर्स। दैट मीन्स लेट्स एंजॉय द डे इन द पार्क और इन सम गार्डन एट सम प्लेसेस। और इसके पीछे 3 रीजंस थे। साइड बाय साइड आई विल कीप यू मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो कौन से 3 रीजंस थे, विच वर दोज 3 रीजंस which were tempting friends to pass the day out? Number 1, the day was warm. The warm was there means दिन काफ़ी गर्म था, bright था, so he was enjoying the day. The birds were chirping. The birds were making very melodious sound. And the soldiers were drilling. Prussian soldiers were drilling. Drilling means marching. जैसे आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पर जो परेड होती है उसमें सोल्जर्स ड्रिल करते हुए जाते हैं, तो द सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, सो फॉर फ्रेंड्स इट वॉज वेरी मच अट्रैक्टिव देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। कहाँ रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स और कहाँ ये ब्यूटीफुल डे? नंबर 1, द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट. Number 2, birds were chirping, and number 3, the Prussian soldiers were drilling. So friends wanted to enjoy the day by skipping the class of M. Hamel. और इसके रीज़न क्या थे? 2. पहला रीज़न, he had got late. Reason number 2, he had not learned the rules of participles. So it means temptation was very strong, reason was very strong to bunk the school. लेकिन somehow he decided कि चलो यार चलते हैं, let's go to school. So finally when Franz passed the town hall, अब वो स्कूल जा रहा है, somehow his instinct told him, कई बार होता है ना हमारी कंसाइंस हमें कुछ कहती है करने के लिए, तो फाइनली his instinct told him to go to school. And when he passed town hall he found crowd outside the bulletin board. This is very important question from the examination point of view. The bulletin board had been displaying bad news related to war for the past 2 years. पिछले 2 साल से यहाँ पर bad news आ रही हैं. As you know, it was time of 1870 and 71, the 19th century. Technology was not advanced. आज तो बहुत सुपर फास्ट टाइम है, एवरीथिंग इज सिंगल क्लिक अवे, विद इन सेकेंड्स न्यूज़ वायरल हो जाती हैं. बट इन 1870 द न्यूज़, द मैसेजेस वर नॉट फ्लैश्ड इन सेकेंड्स, दे यूज टू टेक टाइम. तो वट एवर न्यूज़ रिलेटेड टू वॉर यूज टू बी देयर, वो कहाँ पेस्ट हो जाती थी? बुलेटिन बोर्ड पर. वहीं लोग इकट्ठा होते थे, जिस लाइक आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन लगा देते हैं एंड स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाया नोटिस बोर्ड. तो फ्रेंड्स वहाँ पहुँचा व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल एंड देयर वाज ए ह्यूज क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड. ही वाज शॉक्ड कि आज क्या न्यूज़ हो सकती है, बट ही वाज ऑलरेडी लेट, दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू स्किप. उसने ये स्किप कर दिया. प्लीज डोंट फॉरगेट द नेम वॉचर. लेट मी शो यू द नेम. When Franz was running towards school, Watcher, the blacksmith, he taunted Franz, "Don't go so fast, bub." कि बेटे इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है आरटीसी की फॉर्म में. Why did Watcher mention such language to Franz? It was concern और इट वॉज sarcasm? इट वॉज ए sarcasm. ये उसका टॉन्ट था. So this is very important question. But Franz was not in mood to argue with anyone. Franz was not in mood to stop anywhere. That's why he decided to run. Now, which 3 activities did Franz notice which generally did not happen in school?
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड स्कूल, ऐसी वो कौन सी एक्टिविटीज थी जो उसने वहां नोटिस की जो पहले नहीं थी? नंबर वन, देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस, मीन्स जनरली वेन एवर स्कूल स्टार्टेड देयर यूज टू बी ग्रेट नॉइज, और इतना नॉइज होता था, इतना कोमोशन होता था, विच कुड बी हर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट, आप गली से ही सुन सकते थे उसे। बट आज टुडे व्हेन फ्रेंड्स वाज रीचिंग स्कूल ही नोटिस्ड देयर वाज साइलेंस। क्यों है साइलेंस? उसे पता ही नहीं कि आज न्यूज़ क्या फ्लैश हो चुकी है। जनरली क्या होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कभी डेस्क खोलने की और डेस्क बंद होने की आवाज़ आती थी, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती थी लाउडली। बट टुडे देयर वाज नथिंग, ना तो एम हैमल के रूलर की आवाज़ आ रही है, ना बच्चों के चीखने की आवाज़ आ रही है, एवरीथिंग वॉज स्टिल। इट वॉज लुकिंग लाइक ए संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे मॉर्निंग का सीन हो। यू नो स्कूल्स आर ऑफ ऑन संडे, दैट्स वाई देर इज़ नो नॉइज, नो वॉइस ओवर देयर। टुडे इट वॉज संडे मॉर्निंग सीन। फॉर ए सेकेंड फ्रेंड्स को लगा कि छुट्टी तो नहीं है, क्योंकि आज कोई कॉमोशन नहीं, आज कोई नॉइज नहीं। तो ही पीप्ड फ्रॉम द विंडो, खिड़की से उसने झांका कि लेट्स चेक व्हाट इज द सिचुएशन। और क्या नोटिस किया उसने? ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। एम हैमल, द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, he was walking up and down with his terrible iron ruler. It means he was a strict teacher. Or everybody was sitting silently. अच्छा, एक बात आपको मालूम होगी, इफ क्लास इज chaotic, class is disturbed, class is unmanaged, so you can enter the class without any tension because you will not be noticed that you are late. But if class is going on in systematized way and you are late, so you will be noticed. यही हुआ फ्रेंड्स के साथ। टुडे he had to enter the class in presence of everyone. Here, putting his hand on his heart, friends opened the door. He was confident today he will be scolded. आज डांट पड़ने वाली है, वो भी जबरदस्त। बट नथिंग हैपेंड। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा हुआ क्या? एम हैमल, हु यूज टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, हु यूज टू स्कोल्ड, उन्होंने मुझे बस देखा एंड वेरी काइंडली, बड़े ही काइंडनेस के साथ बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जस्ट सिट, वी वर अबाउट टू स्टार्ट, हम शुरू करने ही वाले थे विदाउट यू। इतना काइंडनेस, इतना लव। फ्रेंड्स वाज शॉक्ड कि आज क्या हो गया भाई। डिस्पाइट बीइंग लेट, एम हैमल सेड मी नथिंग। So naturally, Franz jumped over his seat. Now he got relaxed. When he got relaxed, when he heaved sigh of relief, heaved sigh of relief, मतलब राहत की सांस लेना, HEAVED, heaved, SIGH, sigh of relief, उसने राहत की सांस ली कि चलो भाई आज तुम बच गए। Now, when he took sigh of relief, अब उसने नोटिस किया कि ये क्लास में चल क्या रहा है। नंबर वन, he noticed M. Hamel was wearing beautiful green coat, frilled shirt and little black silk cap, all embroidered. दो कपड़े आज एम हैमल ने पहने हुए हैं, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप। These clothes he used to wear on इंस्पेक्शन डेज, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज। लेकिन आज ना इंस्पेक्शन है स्कूल में, ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर आज एम हैमल ये कपड़े क्यों पहन के आए हैं? तो अगला एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके? विच स्ट्रेंज और अनयूजुअल थिंग्स फ्रेंड्स नोटिस्ड व्हेन ही एंटर्ड द क्लास? नंबर वन, he was not scolded by M. Hamel despite being late. Number two, M. Hamel was in those special clothes which he used to wear on special days. Number three, back benches which always used to be empty
Today they were occupied by the village people. Number 3, the back benches were occupied by the villagers. वहाँ आज गांव के लोग बैठे हुए हैं. हॉजर जो कि फॉर्मर मेयर है वो भी बैठा हुआ है, हॉजर बैठा हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं, पोस्ट मास्टर हैं और पता नहीं कौन कौन. मीन्स ऑन द बैक बेंचेस सो मैनी विलेजर्स वर सिटिंग. और वो लोग जो ओल्ड थे, बूढ़े थे, जिनका स्कूल से कहीं तक कोई लिंक नहीं था. एंड एवरीबडी वर लुकिंग सैड. अब इट वॉज ए मिस्ट्री फॉर फ्रेंड्स वाई ऑल दिस is going on. School was quiet, giving the appearance of Sunday morning. Students were silent. They were sitting silently on their benches. When I got late, M. Hamel said me nothing. He was in special clothes, and back benches were occupied. Why? Why all these things were going on? So when I was thinking all these things, मैं आपको याद दिला दूं कि हम वही points कर रहे हैं which are directly relevant from the examination point of view, और एग्जाम में इन्हीं पॉइंट में से डेफिनेटली आएंगे. यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स, यू कैन मार्क दी क्वेश्चंस विच आई एम मेंशनिंग यू साइड बाय साइड. यू कैन सी ऑल दीज क्वेश्चन इन द एग्जाम. So now Franz was just analyzing, thinking, he was fighting with his own thoughts. अभी सोच ही रहा है ये सब प्रॉब्लम क्या है, ये सब मिस्ट्री क्यों है. Now M. Hamel in his grave and gentle tone, grave means serious, gentle means very much kind tone, announce किया, my children, this is the last lesson I shall give you. Finally M. Hamel announced the news which was the reason of all the scenario. आज मेरा लास्ट लेसन है आपके साथ. It means the Prussian army had overpowered two districts of France, Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine. And because of that acquisition, the France had lost its two territories, Alsace and Lorraine. और जैसे ही, अब हम बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक शाउनिज्म की, just as Alsace and Lorraine came in the custody of Prussia, the authorities imposed a rule: from tomorrow only German language will be taught. Mother tongue will not be taught. Mother tongue को नहीं पढ़ाया जाएगा. It means all the French teachers lost their jobs. The same had happened with M. Hamel also. He was bound to leave the school unceremoniously. जैसा आपने भी देखा होगा स्कूल्स में जब भी कोई टीचर को आप फेयरवेल देते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम से उनको सी ऑफ किया जाता है, उनकी विदाई होती है. लेकिन यहाँ अनसेरिमोनियसली. दैट्स वाई हिज टोन वॉज ग्रेव. सडनली फ्रेंड्स रियलाइज्ड, ओ द रैचेज दैट वाज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड. जो न्यूज़, जो मैसेज फ्रेंड्स ने बुलेटिन बोर्ड पर मिस कर दिया वो ये था. इफ़ ही हैड गॉन थ्रू दैट मैसेज ही वुड हैव नोन. उसको मालूम होता कि आज स्कूल में जो ये अनयूजुअल सिचुएशन है क्यों है. तो नाउ ही केम टू नो द मिस्ट्री रिजॉल्व्ड. एंड सडनली all his feelings about his mother tongue, about M. Hamel, they started bubbling up. His emotions started bubbling up. He started cursing himself for ignoring the mother tongue. He started feeling sorry for M. Hamel and he called him poor man. क्यों poor man बोला? Poor man over here means the person who was unlucky, because suddenly he lost his job and he was going from the school unceremoniously. In the exam you may find one more question. और एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट भी आता है. वट एवर वी हैव इन अवर पोजेशन वी टेक दैट पर्सन और थिंग एज ग्रांटेड. ये भी इस चैप्टर का एक और पॉइंट है. जो चीज़ हमारे पास इजीली होती है अवेलेबल, या जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ दैट पर्सन और थिंग. हम उसकी वैल्यू नहीं समझते.
एंड व्हेन द थिंग स्टार्ट स्किपिंग फ्रॉम आवर हैंड्स वी बिकम वेरी मच पोजेसिव। जैसे कि यहाँ हुआ अल्सेशियंस और लॉरेनियंस के साथ, दे वर टेकिंग देयर मदर टंग एज ग्रांटेड, बट व्हेन दे रियलाइज इट वाज द लास्ट डे they became very much possessive. So Franz was fighting with his own thoughts. Suddenly his name was called कि बेटा चलो recite the rules of participles. कल मैंने असाइनमेंट दिया था ना, अब सुनाओ। एम हैमल called the name of Franz। अब याद हो तो बताए, वो तो भूल चुका था, उसको तो मालूम ही नहीं था। I wanted to express the rules without mistake, लेकिन हुआ क्या, I got mixed up। मैं खड़ा तो हुआ बट आई कुड नॉट अटर, अटर मीन्स स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड नहीं निकला मुंह से। और आई केप्ट स्टैंडिंग विद डाउन कास्ट, मीन्स मेरे में हिम्मत नहीं थी ऊपर देखने की, मेरी नज़रें कहाँ हैं, नीचे की तरफ। तो एम हैमल मैंशन कि चलो आई विल नॉट फील सॉरी फॉर यू, आज मैं आपको डांटूंगा भी नहीं, आपको बुरा, आपके लिए मैं बुरा भी नहीं फील कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या किया, वी केप्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग अवर मदर टंग, और उसका रिजल्ट ये है कि टुडे वी लॉस्ट अवर मदर टंग। आज हमारे हाथ से वो चली गई है, एंड नाउ वी वांट टू लर्न इट बट वी डू नॉट हैव टाइम, अब टाइम नहीं है। तो दैट्स वाई एम हैमल सेड नथिंग बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड कि फ्रेंड्स वाज फीलिंग गिल्टी, फ्रेंड्स वाज फीलिंग सॉरी। और फ्रेंड्स ही क्यों, जितने भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं दे ऑल वर फीलिंग सॉरी फॉर इग्नोरिंग देयर मदर टंग। यहाँ पर एम हैमल ने एक बात और बोली, वाई डिड एम हैमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डिड एम हैमल नॉट ब्लेम चिल्ड्रन बट ही ब्लेम टू पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि पेरेंट्स, कौन कह रहा है ये, एम हैमल कह रहा है बच्चों से, क्लास से, कितनी ही बार ऐसा हुआ कि पेरेंट्स दे प्रेफर्ड यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल। सोचिए आपका स्कूल का टाइम है और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप फैक्ट्री में, शॉप पर जाकर के बैठ जाएं। इट मीन्स दे आर टेकिंग द एजुकेशन एज ग्रांटेड। तो बच्चों के मन में क्या पड़ेगा, बच्चे भी यही सोचेंगे कि एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि योर पेरेंट्स डिड नॉट सेंड यू टू स्कूल, और मैंने भी तो गलती की, आई ऑल्सो हैव टू बी ब्लेम। रीजन, वेन एवर आई डिड नॉट वॉन्ट टू टीच यू, मैंने कहा बेटे काम करो, वाटर माई फ्लावर्स, बजाय आपको पढ़ाने के मैंने आपको भेज दिया अपने प्लांट्स में, अपने फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए, पानी देने के लिए। या फिर वेन एवर आई वॉन्टेड टू गो फॉर फिशिंग, मैंने आपको छुट्टी दे दी, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो गलत हूँ। तो एम हैमल ओवर हियर रिप्रोच्ड, रिप्रोच का मतलब होता है क्रिटिसाइज, रिप्रोच का मतलब होता है चाइल्ड, रिप्रोच का मतलब होता है स्कोल्ड, अपने आप को डांटना, अपनी बुराई करना, अपना क्रिटिसाइज करना। तो ये वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं, ये वाला वर्ड है रिप्रोच, क्रिटिसाइज। पहले उन्होंने किसको रिप्रोच किया, पेरेंट्स को। क्यों रिप्रोच किया, बिकॉज पेरेंट्स डिड नॉट सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल बट दे सेंड चिल्ड्रन टू मिल्स और फार्म। खुद को क्यों रिप्रोच किया, because whenever he did not want to teach he sent children to water the plants, or whenever he wanted to go for fishing he sent the children to enjoy holiday। अब ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ऐसे करेंगे तो कभी पेरेंट्स का मन नहीं है बच्चों को भेजने का, कभी टीचर का मन नहीं है पढ़ाने का, तो कभी बच्चों का मन भी तो नहीं होगा पढ़ने का। इससे क्या होगा, पूरा स्कैनेरियो, पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वही हुआ। नाउ ये सब बातें हुई, एम हैमल kept delivering his lesson and all the children were listening very attentively। now very very important point, एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या आएगा, why did एम हैमल call French language key of lock of prison। very very important question। according to एम हैमल the French language is key of lock of prison। जैसे गुलामी, स्लेवरी को बैड माना जाता है, एवरीबडी नोज, एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, और एवरीबडी वांट्स टू कम आउट फ्रॉम द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। शैकल्स मीन्स चेन्स, जंजीरें, तोड़ना चाहते हैं उन्हें, लेकिन तोड़ेंगे कैसे, ए सिंगल पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग। जस्ट लाइक इंडिया
which was under the custody of the British rules for centuries. तो अकेले एक आदमी की एफर्ट से काम नहीं हुआ. यूनैनिमसली वी हैड टू वर्क. और यूनैनिमसली काम कब होगा? जब हम सबको जोड़ेंगे. एंड यू कैन कलेक्ट द पीपल ओनली व्हेन यू फॉलो योर मदर टंग. इन फॉरेन लैंग्वेज यू कैन नॉट कनेक्ट द पीपल. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि होल्ड फास्ट टू योर मदर टंग. अपनी मदर टंग को भूलना नहीं है. बिकॉज ओनली मदर टंग इज दैट की विच विल हेल्प यू ऑल टू यूनाइट. एंड इफ यू विल बी यूनाइटेड you will be able to fight against the oppressors or the ruling class. And after that he started the lesson. I and other students were listening each and every word of M. Hamel very attentively. And today it seemed M. Hamel, फिर उन्होंने वर्ड यूज किया पुअर मैन. एम हैमल वॉज वेरी मच पेशेंट एट द टाइम ऑफ टीचिंग. ऐसा लग रहा था कि ही वॉन्टेड टू गिव ऑल बिफोर गोइंग. होता है ना, जब लास्ट डे होता है तो हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं. एम हैमल वॉज वेरी वेरी इमोशनल. ऐसा लग रहा था कि ही वॉन्टेड टू पोर आउट ईच एंड एवरी नॉलेज अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स. उन्होंने क्लास में ग्रामर के रूल्स करवाए. जो भी उन्होंने करवाया बच्चे पढ़ते रहे साइलेंटली. एंड नोबडी वॉज लुकिंग हियर एंड देयर. अब हुआ क्या? ए बीटल एंटर द क्लास बट नोबडी पेड अटेंशन बिकॉज एवरीबडी वॉन्टेड टू ग्रास्प, एवरीबडी वॉन्टेड टू ग्रैब each and every piece of information from M. Hamel. सिर्फ पेन ओवर द पेपर के स्क्रीचिंग की आवाज़ आ रही थी, सबके लिखने की आवाज़ें आ रही थी. एवरीबडी वॉज ऑक्यूपाइड इन जॉटिंग डाउन, इन राइटिंग डाउन वाट एवर वॉज बींग इंस्ट्रक्टेड इन द क्लास. एम हैमल जो भी क्लास को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे बस वही लिख रहे थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. ये एग्जाम में लाइन आएगी आपके. व्हेन द क्लास वाज गोइंग ऑन सडनली ए पिजन वाज हर्ड कूइंग. पिजन के कूइंग की आवाज आई. देन फ्रेंड्स थॉट इफ दीज रूलिंग क्लास पीपल, इफ दीज पर्शियंस आर स्नैचिंग अवर मदर टंग फ्रॉम अस, विल दे स्नैच मदर टंग ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो? And if they cannot snatch the language of mother tongue of birds and animals, what right do they have to snatch our mother tongue from us? This was feeling of anger. कि अगर birds और animals से उनकी mother tongue नहीं छीन सकते या नहीं छीनी जा रही, फिर हमसे हमारी mother tongue क्यों छीन रहे हैं? So we should be spared. At the time of writing, so many times friends looked up. When he was writing, so many times he noticed M. Hamel was sitting motionless. और हो भी क्यों ना? After all, he had given 40 years to school for decades. आपने किसी एस्टेब्लिशमेंट को, किसी शॉप को, किसी इंस्टीट्यूट को 40 साल दिए हों तो यू फील वेरी मच possessive for that place. M. Hamel was also feeling the same. So many changes had taken place before him. उन्होंने वॉलनट ट्री को बढ़ते हुए देखा जो उनके क्लास के बाहर था. जो बेंचेस थे, डेस्क थे, वो भी स्मूथ हो गए थे विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द स्क्रैचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. और भी बहुत सारी चीज़ें. एंड व्हेन ही वाज जस्ट फीलिंग नॉस्टैल्जिक about his 40 years of service, suddenly he heard his sister moving about in the room packing their trunks. क्योंकि कल एम हैमल को जाना है तो जो ट्रंक्स हैं उनमें पैकिंग की जा रही है सामान की. तो एम हैमल was entirely engrossed in his thinking and he was feeling nostalgic. But anyway,
ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन, वो चाह रहे थे कि सुनने जाने से पहले हर बच्चे की जो लर्निंग है, जो उन्होंने आज टीच किया, वो सुन लें। तो इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को ध्यान से सुना। एवरीबडी वॉज इमोशनल, एवरीबडी वॉज क्राइंग, उनकी वॉइस ट्रेम्बल हो रही है, कांप रही है, बिकॉज ही वॉज इमोशनल। और अभी क्लास चल ही रही थी, ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजिलस, प्रेयर का टाइम हो गया, एंड ट्रम्पेट्स ऑफ पुर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। इट मीन्स द era of M. Hamel was ended. A new era of German teacher was going to be started. जैसे ही 12 का टाइम हुआ, M. Hamel stood up. He was looking very pale. Why was he looking pale? Because he was very much disturbed internally. So the reflection of disturbance was visible on his face. And finally उन्होंने क्या बोला? My friends, I, 2 times I means he was not able to utter in systematized way. He started stammering, and it happens when we are too much emotional. किसी चीज ने उनका गला चौक कर दिया, मीन्स उनको ब्लॉक कर दिया. He was not able to complete his sentence. अब बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट इमोशंस वर नॉट permitting him to say. That's why he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and जितनी पावर से वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस लॉन्ग लिव. देन ही स्टॉप्ड, लीन्ड, झुकना, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, ना कुछ बोले. ही मेड ए जेस्चर, क्या जेस्चर था? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. इन दिस वे द लास्ट लेसन ऑफ एम हैमल finished. So what is the story mentioning? We should not take anything as granted. Whatever we have in our possession, we must respect and love that person or thing, because later on we just keep feeling sorry, and what is the benefit of feeling sorry only? Got it, friends? Koi check? So we have completed first chapter of Flamingo, the last lesson. Thank you, friends. Bye bye.